দর্শক, আজকে বেরিয়ে পড়েছি অন্য একটা বিষয় নিয়ে কভার করতে। আপনাদের হয়তো মনে থাকবে, মানে 2002-এর যে ঘটনা, সেখানে দুজন কার্যত পোস্টার বয় মানে বনে গেছিলেন আর কি। একজন হচ্ছেন অশোক মোচিও বলে দেখি রিপোর্টে নাম এসেছিল, অশোক মোচি, অ্যাকচুয়ালি জুতোর কারবারি আর কি। আর একজন কুতুবুদ্দিন আনসারি। নিশ্চয় দর্শক ছবিগুলো দেখে মনে পড়ছে, মানে দুজন দুরকম ফেস। অশোক মোচির যে ফেস দেখছেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এটা হচ্ছে হিংসাত্মক একটা ফেস। আর কুতুবুদ্দিন আনসারি আক্রান্ত, শিকার, এরকম একটা ফেস। এই দুটো ফেস নিয়ে কিন্তু একটা সময় মিডিয়াতে অনেক খবরাখবর হয়েছে, নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। এখনও গুগলে সার্চ করলে এই ফেস দুটো বেরিয়ে আসে, গুজরাট দাঙ্গা বললেই, লিখলেই, বা ইংরেজিতে রায়টস লিখলেই। তো আজকে ভাবছি যে এই দুজনের খোঁজ করব, যদি অন্তত একজনকেও পাওয়া যায়। এবং মাঝখানে আবার একটা খবর দেখছিলাম, এই দুজনকে দুরকম ফেস হিসেবে যেটা আর কি তুলে ধরা হয়েছে, তাদের মধ্যে নাকি আবার বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেছে, এটাও খবরে দেখেছিলাম। তো জানি না পাবো কি না, একটু খোঁজ খবর করছি অটো নিয়ে শহর জুড়ে। আসলে অ্যাড্রেসটা তো জানা নেই ঠিক করে, মোটামুটি একটু জেনেছিলাম, সেটা ধরে খোঁজ খবর করার চেষ্টা করছি। দর্শক, দেখছি একটা চায়ের দোকানে এসেছি, জিজ্ঞাসা করি, भैया अशोक मोची को जानते हो? नहीं सर। यहाँ अहमदाबाद में रहने वाला है, पता है? नहीं सर। कहाँ का कुछ नहीं पता है? नहीं। और कुतुबुद्दीन अंसारी पता है कहाँ है? नहीं सर। क्यों तो बोलते पारছেন না, देखिए অন্যভাবে खोज নেওয়ার। भैया ये अशोक मोची और कुतुबुद्दीन अंसारी जानते हो कहाँ रहते हैं इधर? नहीं। यह तो बहुत फेमस हो गया था ना, वो लोग का बारे में बहुत खबर निकला था अखबार में। पता है दोनों का घर कहाँ अहमदाबाद में? नहीं पता। तो बेस समस्या, क्यों बोलते पारছেন না दर्शक। भाई साहब आपका पता है? देखी খোঁজ করতে হবে, কেউ তো বলতে পারছেন না। একজনকে পেলে অন্তত চলে যায় বিষয়টা। দর্শক দেখা যাক। भैया ये अशोक मोची और कुतुबुद्दीन अंसारी, जिसका बारे में एक टाइम में अखबार में बहुत न्यूज़ निकला, पता है उसका कहाँ घर है? कहाँ घर है पता है अशोक मोची और कुतुबुद्दीन अंसारी? नहीं पता ना, क्यों तो কিছু বলতে পারছে না। भैया अच्छा, एक आपके अहमदाबाद में एक टाइम में बहुत नहीं, अच्छा वो तो नहीं। भैया अशोक मोची और कुतुबुद्दीन अंसारी अहमदाबाद का पता है कहाँ घर है? ओके दर्शक, देखी অন্যভাবে কোথাও জানতে পারি কিনা। দর্শক, অনেক খুঁজে পৌঁছেছি। কোথায় পৌঁছেছি, কার বাড়িতে পৌঁছেছি, যার ছবি একটা সময় আপনারা দেখতেন বাংলাতে বিভিন্ন পেপারে, যার ছবি বের হতো, ভয়ঙ্কর সেই ছবি। গুজরাটের 2002-এর যে দাঙ্গা, তারপর মানে ক্ষতিগ্রস্ত, শিকার হওয়া। এখন চিনতে পারবেন কুতুবুদ্দিন আনসারি, যার ছবি আপনারা দেখতেন, যিনি বাংলাতে একটা সময় গিয়েছিলেন। বাংলাতে তাকে রাখার, গোটা পরিবারকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, নিশ্চয়ই দর্শক চিনতে পারছেন। যখন আমি এই আহমেদাবাদে এসেছি ওয়ার্ল্ড কাপ দেখতে, আমি দেখছি অনেকেই বলছেন যে 2002-এর ব্যাপারে একটু বলুন, 2002-এর ব্যাপারে একটু বলুন। তো সেটা আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ, একটু বলা দরকার। তো সেটা ভাবতে গিয়ে ভাবলাম যে সেই লোকগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে, যাদেরকে আমরা দূর থেকে দেখতাম ছবিতে। এবং যাকে দেখছেন ইনি তো বাংলাতেও গিয়েছিলেন, কুতুবুদ্দিন আনসারি। এখন চলে এসছেন আহমেদাবাদে, চলে এসছেন, এখানেই রয়েছেন। তো কেমন রয়েছেন, আমি সেই জন্য খোঁজ নিতে চলে এসেছি একেবারে বাড়িতে। বাড়ি দেখছেন, ছিমছাম বাড়ি, ছোট্ট এক কামরা, ছোট্ট বাড়ি। উপরে দর্জির কাজ করেন বলে আমি জানতে পারলাম। তো আমি জানবো, বাংলা কিছু শিখেছিলেন ওখানে যখন ছিলেন? बांग्ला नहीं आती मुझे। अब नहीं आते ना,
एक साल था ना उधर? जी, 1-1.5 साल जैसा था। बोलिए कैसे हो अभी? अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। तबीयत ठीक है? हाँ, मालिक का करम है। आपका तो फिगर थोड़ा ये लग रहा है। हाँ, 20 साल हो गया उस बात को। 20 साल के अंदर आदमी कुछ तो फ़र्क आएगा ना। एक टाइम था जब आपका पिक्चर हर अखबार में छपते थे, अब तो निश्चय देखा होगा। हाँ, वो चीज़ की एक पहचान बन गई थी, मगर अभी धीमे धीमे कम हो गया वो। आपका आंखों में से आंसू, हाथ जोड़ के, याद है न? हाँ, सब बिल्कुल नज़र के सामने हर चीज़ है, मगर सच्चाई तो ये है कि वक्त के साथ सब धीमे धीमे कम हो जाता है। वो भी कम हो गया, सब अपने परिवार में मस्त रहेंगे अभी। आप तो बंगाल में कितना साल था? मैं बंगाल में 1 साल से ज़्यादा रहा। कहाँ एड्रेस पता है? हाँ, एड्रेस मुझे से थोड़ा थोड़ा याद हैगा। तिलजला रोड था, तोपसिया, फिर पार्क सर्कल मैदान, डॉन बॉस्को स्कूल, फिर चितरंजन हॉस्पिटल, ये सब मेरे घर के आजू बाजू में था। मैं जो रोड पे रहता था वो रोड का नाम था तिलजला रोड नाम था उसका। पार्क सर्कल नाम का एरिया था वो। पार्क सर्कस बहुत मैंने याद तो बहुत है। वहाँ से कौन सा साल में यहाँ आया वापस? मैं वहाँ से 2004 में वापस आया शायद। और तो क्यों चला है इधर? आ गया बस, यानी यहाँ भी सब नॉर्मल हो गया था और मेरा वहाँ जाना एक मजबूरी थी, कोई मैं शौक़ से नहीं गया था। यहाँ पे हम गुजरात के हालात नॉर्मल हो गए थे। यहाँ मेरा परिवार था, मेरे रिश्तेदार थे, मेरी माँ थी, मेरी बहन भाई थे, मेरी पैदाइश यहाँ की थी, यहाँ के लोग, मेरा बचपना यहाँ का था। मजबूरी थी एक मुझे वहाँ जाने की। थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे परिवार में वापस आ जाना चाहिए। नहीं, ये होमलैंड है, इसको छोड़ के तो ज़्यादा दिन नहीं रख सकता ना। हाँ, यानी मैं कलकत्ता कोई शौक़ से नहीं गया था और ऐसी कोई बात भी नहीं थी। जितने दिन मैं कलकत्ता में रहा, कलकत्ता वालों का मेरे पे एहसान है। वो लोग ने मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, मेरे परिवार के ऊपर हाथ रखा, मेरे दुख के अंदर मेरे साथ हर वक्त मुझे हिम्मत दी उन्होंने। और उन्होंने ही मेरे को वापस यानी यहाँ आने के लिए मेरी मदद भी करी कि भाई परिवार परिवार होता है, आप यहाँ पर आए हमको अच्छा लगा, मगर अपना घर होता है। ओके, तो हम अभी जो घर में हैं, एक घर में उस टाइम पे रहता था ना, दूसरा जगह था? नहीं, वो मैं जो 2002 के टाइम पे मेरे पिताजी के घर में रहते थे हम। कितना दूर? यहाँ से लगभग 5 मिनट का रास्ता है। मोहल्ला ये एक ही मोहल्ला है। यहाँ पे मैं भी 2008 में रहने आया। अभी काम क्या हो रहा है? मैं वही सिलाई काम करता हूँ। कलकत्ता में भी वही काम करता था, उससे पहले भी वही काम करता था और आज भी वही काम करता हूँ। कलकत्ता में वहाँ काम करने लग गया था? हाँ, वहाँ काम करता था। मुझे सिलाई मशीन दे दी गई थी, एक छोटी सी दुकान बना दी थी, काम बनाता था मैं। कॉटन गैलरी नाम का एक शोरूम था, उसका काम बनाता था। उनके सेठ का नाम था कमरुद्दीन भाई। वो मुझे काम देते थे, बदले में मैं काम करके उनको काम देता था, तो बदले में मुझे वो पैसा दे देते थे। तो यहाँ आके सेम काम कर रहे हैं ना? हाँ, वही सेम काम वो यहाँ पे भी कर रहा हूँ। आपका बच्चा कितना? मेरे उस वक्त में 2 बच्चे थे। एक लड़की थी 4 साल की, 4-5 साल की थी, और एक बच्चा था लगभग 8 महीने का, जिशान, जो अभी सामने खड़ा हैगा। तो बहुत बड़ा हो गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी 21 साल का हो गया हैगा। लड़की को शादी हो गया? लड़की, हाँ, लड़की उस टाइम पे 5 साल की थी लड़की। तो कलकत्ता में थे ना? हाँ, मैं जब कलकत्ता गया था जब वो 5 साल की थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी 4 साल पहले उसकी शादी करी। वो भी अपने परिवार में अच्छे से रहती है। एक बात बोलना है, जय कुछ याद है जिस टाइम जो घटना घटी, याद आता है क्या हुआ था? याद तो आता है, मगर उसको याद करके कोई मसला थोड़ी है, उसको भूल जाना ही बेहतर है। ठीक है, हम ज़्यादातर नहीं चाहता है पूछना। तो अभी हालत क्या है बताइए? अभी हालात अच्छे हैं, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हैगी, मालिक का करम है। आज की तारीख में लोग अपने खुद की परेशानियां, लोगों के पास इतनी सारी है कि लोगों को ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं हैगा। और अच्छा है, सामान्य लोगों में कोई ऐसी भेदभाव नहीं है। हर आदमी अच्छे से रहना चाहता है, सुकून हर इंसान को पसंद है, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। जो हालत हुआ था अभी की पूरा नॉर्मल हो गया? हाँ, नॉर्मल है अभी, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं, हमारे देश में तो इसकी जगह ही नहीं हैगी। हो जाता है वक्ती तौर पे, लेकिन उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती हैगी। ये हमारा प्लस पॉइंट हैगा कि हम उसको भूल भी जाते हैं और वापस एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और सच्चाई यही हैगी कि हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते।
अभी जब मार्केट में निकलते हो तो अब आप मुस्लिम हो और दूसरा गैर मुस्लिम हो, तो एक साथ मुलाकात, दोस्ती, मैंने पहले से जैसे था अभी ऐसे हो गया? हाँ ऐसा है, ऐसा कुछ है नहीं। देखो वो ऐसी चीज़ है जिसके साथ बीती है वो तो उसको ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हैगा, लेकिन उसी को लेके अगर सारी ज़िंदगी हम सफ़र करेंगे तो उस तरह से ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं हम। जो जहाँ रहते हैं हम, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ पकड़ करके और ज़िंदगी के साथ समझौता करके आगे बढ़ना पड़ता हैगा। हम जो जानना चाहता है, ये एक टाइम में ऐसी सोचा था जब आप यहाँ से चला गया था, तो अभी जो स्थिति है यहाँ का, आप बोल रहे हैं जे ऐसे नहीं है जो मुसलमान लोग यहाँ नहीं रह पाएगा, ऐसी नहीं है, ये रहने के लिए परिवेश सब ठीक है, हो गया? हाँ पहले भी ऐसा नहीं था, पहले भी ऐसा नहीं था। वो उस वक्त वो घटना बड़ी घट गई थी और मैं उसके साथ एक ऐसा जुड़ गया था कि इतना सब नज़रों से देख लिया था कि डर मेरे सर पर एकदम हावी हो गया था और मैं डर गया था। और वो वक्त के साथ धीमे धीमे मेरा डर कम हुआ और मैं नॉर्मल रहने लगा। आज मैं मालिक का करम में यहाँ रहता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं हैगी जिससे मुझे डर लगे या ऐसी कोई बात हो गए। अल्लाह का शुक्र रहेगा, अच्छे से रहते हैंगे और ऐसा कुछ माहौल में दिखता भी नहीं हैगा कि ऐसा कुछ होगा। इस मोहल्ला में हुआ था, इस मोहल्ला में, इलाका में? ये सारा मोहल्ला जल गया था। अच्छा। ये सारी बस्ती जल गई थी और आज वापस मालिक ने बना दिया, सब वापस आ गए, सब रह रहेंगे। अभी तो ठीक है, हालात तो सब ठीक है? हाँ अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अरे एक पिक्चर हम देखा है, जे एक पोस्टर बॉय बन गया था अशोक मोजी, उसका पेपर में जो था, दोनों पिक्चर अशोक मोजी और आपका, लेकिन बाद में हम सुना, रिपोर्ट पढ़ा कि आप दोनों का दोस्ती हो गया था। हाँ दोस्ती ही एक रास्ता हैगा इस संसार में रहने का, हम मिलजुल के ही रह सकते हैंगे। एक जगह पर ऐसी हालात आए कि हम दोनों को साथ में आना पड़ा और केरला के अंदर हम लोग पहली बार मिले और वहाँ पर अशोक परमार ने यानी लोगों के आगे खड़े होकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि जो भी हुआ था वो गलत हुआ था, मुझे उसका दुख है। आपका सर कन्फेस किया आपका सामने? हाँ, बोला समाज के आगे खड़े होकर कन्फेस करा उसने कि भाई जो भी उस वक्त हुआ उसका मुझे दुख है, नहीं होना चाहिए था ऐसा, मगर वो हो गया। लेकिन हम अब इसी प्रार्थना करते हैं, इसी कोशिश करेंगे कि आज के बाद ऐसा कभी ना हो। उसकी वो बात मुझे हट करी, मुझे अच्छी लगी और मैं भी उससे आगे बढ़ के उससे मिला। और अशोक मोची का इस तरह से समाज के आगे बोलना एक अपने आप में बहुत वजूद रखता है वो बात को। और मुझे भी एहसास हुआ कि भाई इस इंसान को अपनी चीज़ का एहसास हैगा और एहसास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान के अंदर। उसके बाद हम कई जगह पर मिले। फिर अशोक परमार ने अपनी दुकान का ओपनिंग करा था, उसको एक जगह से फंडिंग मिला था तो उसने यानी उसको बिजनेस करने के लिए उस टाइम पे वो दुकान की रिबन काटने के लिए यानी उसका ओपनिंग करने के लिए उसने मुझे दावतनामा दिया था और मैं भी गया था वहाँ पे। उसको बधाई दी, उसको मुबारकबाद दी, उसको दुआ दे के आया कि भाई मालिक तेरे को हमेशा अच्छा रखे और तू ये कारोबार में आगे बढ़े। ये सबसे बड़ा चीज़ है। और मैं भी ढूंढ रहा हूँ अशोक मोची कहाँ है, वो तो पता है उसका अभी कहाँ है? अब तो वहाँ जो दुकान बोल रहा है वो नहीं है। मेरे को मिले उससे काफ़ी वक्त हो गया अभी, क्योंकि मेरे यहाँ से न कम से कम वो 8-10 किलोमीटर दूर रहता है और मेरा जहाँ वो रहता है वो मेरा रूट नहीं है जाने जाने के लिए। कभी 6 महीने बरस में एक आध बार हम वो बाजू जाते हैं। अभी मैं 6-8 महीने से मिला नहीं और वो फ़ोन भी नहीं रखता हैगा। मगर जैसे ये भाई, ये लोकल भाई आएंगे, इनको मैं समझाता हूँ अगर वो मिल जाएगा तो उतने में ही मिलेगा, नहीं तो फिर वो कभी अहमदाबाद में नहीं होएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है क्या, जे अभी बांग्ला में कोई बोलता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलता है जे ये बंगाल को गुजरात होने नहीं देंगे, तो अभी गुजरात का जो स्थिति है अब क्या बोलोगे? गुजरात की रहने का जगह नहीं है अभी, खास करके मुस्लिम लोग के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हैगा। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर मुस्लिम नहीं रह सकता। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम एक दाल और नमक की तरह मिले हुए हैं और ये लोग हमेशा रहेंगे, रहते थे और रहेंगे। ये सब पॉलिटिकली बयान हैं, पॉलिटिकली बातें हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला हैगा। ये हम देश हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। দারুণ 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 কথা বলেছেন কুতুবউদ্দিন আনসারী। দর্শক কি বলবেন? যদি এইসব নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।